Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So myself Anil Adhikari, PGT Mathematics from DPS Lamachor, and today we are going to discuss about some questions related on Bayes theorem. Okay, this is a very important topic from the probability, and each year one long question comes from this particular content, which is known as Bayes theorem, and also we can say reverse probability. Okay, Bayes theorem is also known as the reverse probability. So in my previous class, I have discussed about total probability and Bayes theorem as well as, and now I am going to execute our knowledge while solving the question. Okay. So let's start the video. So exercise 13.3. Okay, and the very first question of this exercise is an urn contain 5 red and 5 black ball. Question number first, let this is an urn. Okay, this is an urn, you can say, and this contain 5 red, 5 black ball, 5 red and 5 black ball. Okay, and a ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. One ball is drawn from this urn. One ball is drawn from this urn and color is noted and then return to the urn. एक बॉल हमने निकाली, उसका कलर देखा और वापस उसको अर्न में रख दिया. ठीक है. Moreover, 2 additional ball of the same color drawn are put in the urn. और ये जो बॉल है, the ball is returned, बट उसके साथ साथ 2 more ball. Okay, 2 more balls of the same color are put into the urn. Are you getting the questions? What question is demanding? Since this is a urn having 5 red and 5 black ball, one ball is taken out, एक बॉल बाहर निकाला, उसका कलर देखा और उसको रिटर्न कर दिया. ठीक है, बॉल इज रिटर्न टू द बैग, बट उसको लौटाने के साथ ही साथ 2 more एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, जिस कलर की गेंद आई थी उसी कलर की 2 और गेंदें इस अर्न में हमने वापस रख दी. ऐसा हमारा एक्सपेरिमेंट है. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट बेटा? वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ second ball is red. Okay, so see here what is the condition? Second ball red होने की हमें probability निकालनी है. तो there are 2 conditions. Case first, when first ball is red, then second is red. And case second, when first ball is black, then second is red. दूसरी गेंद जो निकल रही है वो तो रेड ही है, कंफर्म है, बट फर्स्ट गेंद के लिए 2 चॉइस है. either it can be a red ball or it can be a black ball. Okay, so let E be the event, E be the event that sorry, even ले लेते हैं. ठीक है, even be the event that the first ball drawn is red, and E2 be the event the second ball drawn is black. Okay, so what should be the probability of even beta? Probability of even means फर्स्ट बॉल के रेड होने की probability. सो टोटल रेड कितनी है बेटा? 5. फेवरेबल आउटकम्स 5 रेड गेन, टोटल कितनी है? 10. तो दिस विल बी 1/2. एंड सिमिलरली probability of E2, it means the first ball not second. Okay, the first ball
फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स पहली गेंद के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी. सो ब्लैक balls are 5, total 10. So this will be again 1/2. Okay. Now here we need to find, let event A be second ball drawn is red. ए हमने एक ऐसा इवेंट ले लिया बेटा कि सेकेंड बॉल जो निकल रही है वो रेड हो, वो इवेंट हमने ए ले लिया. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए, दैट सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड. सो वी विल यूज हियर टोटल प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज रेड. So we will apply here the multiplication, the total probability, theorem of total probability. So probability of getting second ball red is first probability of even into probability of A by even plus probability of E2 into probability of A by E2. ठीक, अब समझेंगे इसको. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मीन्स पहली गेंद जो निकली उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी. देन सिंस इवन हैज़ हैपन, इवन हैज़ अकर्ड, तो अगर पहली गेंद रेड है तब दूसरी के रेड होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज रेड वेयर फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. तो दोनों केसेस को कंबाइन कर लेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 1/2 ए बाई इवन. प्रोबेबिलिटी इवन की हमने फाइंड कर ली थी 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन मीन्स जब पहली गेंद रेड निकल गई तब दूसरे के रेड होने की. तो बेटा अगर पहली गेंद रेड निकल रही है, ठीक है, तो टू मोर बॉल ऑफ द सेम कलर आर पुट इनटू द अर्न. तो अगर पहली गेंद रेड निकल रही बेटा तो वो तो रिटर्न होगा ही होगा, उसके साथ 2 रेड गेंद और जाएंगे यहाँ. तो टोटल रेड 5 + 2 कितनी हो जाएंगी 7. तो दूसरी वाली गेंद के रेड होने की प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन और टोटल हो जाएगा 12. ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. व्हाट इज E2? द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वेयर फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 5, क्योंकि अगर एक ब्लैक निकलेगी तो 2 ब्लैक ही आएंगे यहाँ पे, तो रेड तो 5 ही रहेंगे बट टोटल 12 हो जाएंगे. नाउ मल्टीप्लाई 7 अपॉन 24 प्लस 5 अपॉन 24. दिस इज 7 + 5 12 अपॉन 24. इट मीन्स 1/2. So 1/2 is the required probability of getting the second ball is red. Pause the video and take the screenshot. Now the second question. Okay, let's see the second question. Question number second is, a bag contain 4 red 4 black ball, another bag contain 2 red 6 black ball. So let us make 2 bag first. Question number second, let this one be the first bag, okay, and this is the second bag. This is bag first and this is bag second. Okay, bag first contain 4 red 4 black ball, 4 red and 4 black. Bag second contain 2 red 6 black, 2 red 6 black. ठीक है, next one ball of the 2 bag is selected at random. One ball is selected from anyone. One ball is selected at random from one of the bag. One ball is selected at random and the ball is drawn from the bag which is found to be red. ठीक है, इन दोनों बैग में से किसी एक बैग से ये गेंद को हमने निकाला एंड इट वाज फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल कैसी थी बेटा, रेड थी इन कलर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. सो बेस थ्योरम में देखो बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक इवेंट्स होते हैं E1 E2 E3 En.
एक इवेंट जनरल होता है इवेंट ए विच इज एसोसिएटेड विद द एन इवेंट्स। ये जो इवेंट ए होता है ये गिवन होता है, इसके बारे में हमें पहले से पता रहता है, ओके। और जो इवेंट E1 E2 E3 होते हैं इनके रिस्पेक्ट में हमें इस ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से हम देखें तो बेटा गिवन क्या है, हमें गिवन ये है द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। सो लेट इट बी इवेंट ए। इवेंट ए क्या हो जाएगा? बॉल ड्रॉन इज रेड। ये इवेंट ए हो गया, ठीक। अब ये ए इवेंट एसोसिएट किससे है? इवेंट ए क्या है? बॉल ड्रॉन इज रेड। जो बॉल निकाली गई इन दो में से किसी एक बैग में से वो रेड कलर की है, ये हमें पता है। जो चीज़ पता होती है उसको हम इवेंट ए से डिनोट करते हैं। अब इवेंट E1 और E2 इस ए से रिलेटेड हैं, तो बेटा ये बॉल जो सेलेक्ट होगा, बॉल तो बाद में सेलेक्ट होगा, पहले आप क्या करोगे? बैग का सिलेक्शन करोगे ना। यू हैव 2 बैग्स, सो फर्स्ट बिफोर ड्रॉइंग एनी बॉल फ्रॉम एनी वन ऑफ द बैग फर्स्ट यू सेलेक्ट द बैग। पहले आप क्या करेंगे? बैग का सिलेक्शन करेंगे, तब तो आप गेंद निकालेंगे ना बैग में से। सो इवेंट E1 एंड E2 विल बी द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बैग। सो इवेंट E1 को हम ले लेंगे क्या? सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट, एंड इवेंट E2 इज सिलेक्शन ऑफ बैग सेकेंड, ओके। नाउ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी बेटा? सिंस देयर आर 2 बैग्स टोटल एंड E1 बैग फर्स्ट तो केवल एक ही है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग is 1/2 and similarly probability of selecting second bag is also 1/2 क्योंकि एक ही बैग है, सेकेंड बैग एक है और टोटल 2 हैं, so 1/2। now what we have to do, find the probability that the ball is drawn from the first bag, means what we have to find here, we have to find the probability that the ball drawn is from first bag के लिए क्या है बेटा? इवेंट E1 where given as, ये गिवन है कि जो बॉल फाइंड की गई है वो कैसी है? इन कलर रेड कलर। सो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन वेयर ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ए क्या है? ये ऑलरेडी हो चुका है, इसके बारे में हमें पता है। और वो क्या पता है कि जो बॉल निकाली गई इन दो में से किसी एक बैग से वो रेड थी इन कलर, ओके। तो ये हो चुका है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? इवेंट E1 की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो गेंद निकली वो कहाँ से निकली? फर्स्ट बैग से। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी E1 बाई ए। सो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? P ऑफ इवन, पहले बैग का सिलेक्शन, फर्स्ट सेलेक्ट द बैग देन सेलेक्ट द रेड गेंद, P ऑफ ए बाई इवन अपॉन नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, सो P ऑफ इवन इंटू P ऑफ ए बाई इवन एंड प्लस P ऑफ E2। P ऑफ E2 मीन्स दूसरे बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब बैग सेलेक्ट कर लिया तो रेड गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी किसमें से? दूसरे बैग से, तो P ऑफ ए बाई इवन। नाउ पुट द वैल्यूज, P ऑफ इवन इज 1/2, P ऑफ ए बाई इवन मीन्स पहले बैग से, ओके, पहले बैग से रेड कलर की गेंद को निकालने की प्रोबेबिलिटी। सो देयर आर 4 रेड बॉल इन फर्स्ट बैग, सो इट विल बी 4/8 एंड दिस विल बी सेम 1/2 इंटू 4/8 प्लस P ऑफ E2 सेकेंड बैग का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड बैग से रेड कलर की गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी। सो देयर आर 2 रेड गेंद एंड टोटल विल बी 8। नाउ सॉल्व इट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दिस विल बी 1/4 डिवाइड बाय 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/8, सो दिस विल बी 1/4 डिवाइड बाय टेक 8 एज LCM, सो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8 1, दैट इज 1/4 into 8 upon 3, 4 2 ja 8, so the required probability is 2/3, okay. Pause the video and take the screenshot. Now let's do the next question. बेटा ये जो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस हैं इनमें यू हैव टू आइडेंटिफाई इवेंट ए विच इज एसोसिएटेड विद E1 E2 E3 है ना, जितने भी दिए हों, एंड वी हैव टू क्लासीफाई ऑल द इवेंट्स E1 E2 E3, ठीक है, ए, इन सब को क्लासीफाई करना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, रेस्ट देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है। सो देयर इज नो एनी टफ क्वेश्चन इन बेस थ्योरम।
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question number 3. Of the student in a college, it is known that 60% reside in a hostel and 40% are day scholar. Hostel and day scholar. There are two varieties of student, hostel and day scholars. Okay. So of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel. हॉस्टल में कितने बेटा 60% स्टूडेंट एंड 40% आर डे स्कॉलर. 40% बच्चे कैसे हैं कॉलेज में? डे स्कॉलर हैं. ठीक है, कैसे हैं बेटा? डे स्कॉलर. ओके, नेक्स्ट. प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन अ हॉस्टल अटेंड ग्रेड ए. सो ये जो स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में जो रह रहे हैं, इनके 30% स्कोर ग्रेड ए. ठीक है, एंड डे स्कॉलर में से 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड. तो डे स्कॉलर में से 20% स्टूडेंट हैव अटेंड ग्रेड ए. ओके. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. एक बच्चे को सेलेक्ट किया और ये पता चला कि उसका ग्रेड कैसा है? A ग्रेड है. तो बेटा जो हमें इन्फॉर्मेशन पता होती है उसको हम इवेंट A से डिनोट करते हैं. सो इवेंट A क्या हो जाएगा बेटा? स्टूडेंट गेट ग्रेड A. ये इवेंट ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में हमें पता है. हमें ये पता है कि एक बच्चा हमने जो सेलेक्ट किया उसने ए ग्रेड अटेंड किया, ये ऑलरेडी हमें पता चल चुका है. सो दिस विल बी इवेंट ए. ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ ए हॉस्टलायर. सो हमें ये पता करना है कि जो सेलेक्ट किया गया था बच्चा जिसका ग्रेड ए है, ये एक हॉस्टलायर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो बेटा इवेंट E1 और E2 क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ए एज ऐसा इवेंट जिसके बारे में हमें पता है, और हमें किसके बारे में पता है? हमें ये पता है कि जो स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट किया गया रैंडमली, ओके, उसने ए ग्रेड अटेन किया. सो ए इज़ द इवेंट दैट स्टूडेंट गेट ग्रेड ए. ओके, E1 और E2 इससे रिलेटेड होंगे, एसोसिएट होंगे. तो बेटा स्टूडेंट ग्रेड बाद में, ये तो बाद में होगा, नहीं तो सेकेंडरी हो गया कि स्टूडेंट ने गेट किया ग्रेड ए. पहली चीज़ क्या है? पहले तो आप सेलेक्ट करोगे ना बच्चों को. सेलेक्ट कहाँ से करोगे? फ्रॉम हॉस्टलायर and from day scholar. So event E1 that student is a hostelier. And what should be event E2? Event E2 is student is a day scholar. ठीक है. सो इवन इवेंट हो जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो एक हॉस्टलायर है, हॉस्टल में रहने वाला है. और इवेंट E2 हमने ले लिया कि स्टूडेंट इज़ अ डे स्कॉलर. स्टूडेंट कैसा है? एक डे स्कॉलर है. ओके, एंड इवेंट ए जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है वो ये है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उसको ग्रेड ए मिला. सॉरी. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू फाइंड दैट द स्टूडेंट हु इज सेलेक्टेड एंड हु इज़ गेटिंग ग्रेड ए इज ए हॉस्टलायर. हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बच्चा सेलेक्ट होके आया जिसको ग्रेड ए मिला वो एक हॉस्टलायर था. ठीक, तो हॉस्टलायर के लिए इवेंट क्या लिया हमने? E1. सो वी नीड टू फाइंड द कंडीशनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए. समझ रहे हैं इस चीज़ को? वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ए ऑलरेडी हो चुका है जिसके बारे में हमें पता है. पता क्या है? कि जो स्टूडेंट है उसने ग्रेड ए हासिल किया है. But we need to find the conditional probability that the student who get grade A is a hostelier. Hostelier के लिए इवेंट क्या है? E1. So क्या हो जाएगा? P of E1 into P of A by E1 upon total probability P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. Now put the values here. P of E1 स्टूडेंट इवन क्या है? स्टूडेंट इज ए हॉस्टलायर. तो बेटा हॉस्टलायर कितने हैं? 60%. सो दिस विल बी 0.60. हॉस्टलायर में ग्रेड ए कितने लोगों के आ रहे हैं? 30%. सो दिस विल बी 0.30 डिवाइडेड बाय 0.60 इंटू 0.30. ये सेम है पहला वाला. P of E2 प्रोबेबिलिटी E2 की, स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%. इट मीन्स 0.40. और P A by E2 मीन्स
हॉस्टल आयर में ग्रेड ए 20% प्रोबेबिलिटी दी है, सो 0.20. नाउ मल्टीप्लाइज ऑफ ईच वन ऑफ देम. सो 4 दो स्थान यहाँ पे डेसिमल रिमूव होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. सो दिस विल बी 6 3 जा 1800 एंड दिस विल बी 1800 प्लस दिस विल बी 4 2 जा 800. सो दिस विल बी 1800 डिवाइड बाय 1800 प्लस 800 कितना हो जाएगा 18 19 20. दिस विल बी 2600. दिस विल बी कैंसिल आउट. दिस विल बी 18/26. 2 9 जा 18 13 जा. So 9/13 is the probability that the student who get grade A is a hostelier. Pause the video and take the screenshot. Next question number 4. Question number 4. In answering a question on a multiple choice test, बेटा कोई multiple choice test है, okay? Multiple choice test. एक्चुअली जब आप फिगर आउट करते हो ना चीज़ों को, जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉर्ट आउट द आंसर. ठीक है, आंसर को कलेक्ट करना, ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट है. ठीक है, अ स्टूडेंट एदर नोज द आंसर और गेस. अब इसमें दो कंडीशन है. फर्स्ट, स्टूडेंट नोज द आंसर, और सेकंड, ये हम सबके साथ होता है. अगर हम कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर देते हैं तो या तो हमें आंसर आता है शॉर्ट या तो हम गैस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट आंसर नोज द आंसर एंड द सेकंड ऑप्शन इज स्टूडेंट गैस द आंसर. ओके, नाउ लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर. तो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस. सो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस द आंसर. ओके, लेट स्टूडेंट नोज द आंसर, इसको हम मान ले रहे हैं इवेंट E1 एंड स्टूडेंट गैस द आंसर, इसको हमने मान लिया इवेंट E2. सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 एंड दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2. ओके, नाउ assuming that a student who guess at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that the answer is correct? So given that is the event A, जो हमें पता है, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, वो इवेंट हमेशा कौन सा होता है, वो इवेंट A होता है, जो कि एसोसिएट होता है E1 E2 E3 इन एन इवेंट्स के साथ, जो कि किसी सैंपल स्पेस के इवेंट हैं. तो इवेंट A को यहाँ पे हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, ये लास्ट वाली लाइन को आप पढ़िए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्ट. सो A विल बी द इवेंट दैट द आंसर इज करेक्ट. आंसर करेक्ट होगा, ये इवेंट A है, क्योंकि ये ऑलरेडी दे दिया है. एक बच्चे को इन्होंने रैंडमली सेलेक्ट किया और उसने आंसर दिया, ये पता चल गया कि उसने जो आंसर दिया वो करेक्ट है, तो जो पता चल गया वो इवेंट A हो गया. अब प्रोबेबिलिटी इस बात की फाइंड करनी है दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, मीन्स वी नीड टू फाइंड P even by A. ठीक है, क्यों? ये हमें पता है कि जो आंसर था, जो बच्चे ने आंसर दिया वो करेक्ट है, इसके बारे में हम जानते हैं. सो ये नीचे आ गया. बट वी हैव टू फाइंड द कंडीशनिंग प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट, जिसने कि वो आंसर सही दिया है, वो उस आंसर को जानता था. ही नोज द आंसर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हु गिव द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट नोज द आंसर. वो पहले से ही इसको जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. इट मीन्स ही नोज द आंसर, इसको हमने इवेंट E1 लिया है. सो वी नीड टू फाइंड P E1 by A. सो अप्लाई द फॉर्मूला. सो दिस विल बी P of E1 इंटू P ऑफ, इसका रेसिप्रोकल A/E1 अपॉन नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी. इवेंट कितने हैं, 2 हैं, E1 एंड E2. सो P of E1 इंटू P of A/E1 प्लस
P of E2 into P of A by E2. Okay, now put the values. P of E1, he knows the answer, कितना है probability 3/4. P of A by E1, वो आंसर जानता है, he knows the answer, then he is giving the correct answer. अगर वो आंसर जानता है तब वो करेक्ट दे रहा है तो बेटा इसकी probability तो 1 हो जाएगी ना, इसमें तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं. अगर मैं कोई आंसर जानता हूँ ऑलरेडी और उसी को मैं करेक्ट दे रहा हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवर में भी 1 आउटकम्स और टोटल भी 1, तो 1/1 इसकी कितना हो जाएगा 1 अपॉन P of E1, ये तो सेम ही रिपीट हो जाएगा 3/4 into 1 प्लस P of E2, ही गैस द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4. नाउ P of A by E2, ठीक है, वो गैस कर रहा है तब सही आंसर दे रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो गैस कर रहा है तब सही आंसर दे रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट, ये 1/4 दी हुई है, ये कितनी दी है बेटा 1/4. अगर वो गैस करके करेक्ट आंसर दे रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दी हुई है. नाउ कैलकुलेट इट, सो 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16, so this will be 3/4 divided by 16 is LCM, 16 will be LCM, so 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 plus 16 1 जा 16, so this will be 3/4 multiply 16/13, 4 4 जा 16, that is 4 3 जा 12/13. This will be your required answer. Pause the video and take the screenshot. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है. अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज. एक लेबोरेटरी है जो ब्लड टेस्ट करती है और 99% इफेक्टिव है, मीन्स सही रिजल्ट देती है. ओके, 1% गलत देती होगी आई थिंक व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट. हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स रिपोर्ट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन. मतलब जो हेल्दी पर्सन है, ठीक है, वो अगर टेस्ट को करा रहे हैं तो 0.5% केस में ही क्या है, उनको बीमारी मतलब कोई डिजीज़ डिटेक्ट कर रही है, जबकि वो ऑलरेडी हेल्दी हैं. सो इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive. So given that तो हमारा event A हो जाएगा. event A क्या हो गया, given that the test result is positive. So event A is what, test result is positive. ये आपका event A हो गया. Now we need to find the associated event E1 E2. अगर 3 है तो E3, ठीक है, वो हमें पता करना है. तो बेटा E1 और E2 अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दो ही केसेस हैं. एक केस क्या है कि पर्सन वास्तव में हेल्दी है और दूसरा क्या है, पर्सन वास्तव में हेल्दी नहीं है. ठीक. सो लेट E1 बी द इवेंट दैट पर्सन इज हेल्दी और सेकेंड पर्सन हैज़ एनी डिजीज. E1 is the event that the person is healthy and E2 is the event that the person has any disease. और A क्या है, A जिसके बारे में हमें पता है, यानी जो गिवन है, और वो ये गिवन है कि जो रैंडमली पर्सन सेलेक्ट किया गया उसका रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आया, मतलब उसको बीमारी हुई जिसका उसने टेस्ट कराया. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. मतलब उसको ऑलरेडी बीमारी थी तब उसका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया. तो बीमारी वाले जिसको है उनको हमने इवेंट E2 लिया है. इट मीन्स वी नीड टू फाइंड P ऑफ E2 बाई A. सो ये कितना हो जाएगा, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1
प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। अब समझिए इन सबको, P ऑफ E2 का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ अ डिजीज़। पहले तो सेलेक्ट करोगे आप, पहले क्या करोगे, सिलेक्शन की कौन बीमार है कौन हेल्दी है, जो बीमार है उनका टेस्ट करोगे। सो P ऑफ E2 पर्सन हैज़ एन डिजीज़, उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर जिसको डिजीज़ है उसके पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी अपॉन में टोटल, जो हेल्दी है उसके पॉजिटिव होने की और जो हेल्दी नहीं है उसके पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी। सो P ऑफ E2 मीन्स क्या है, E2 पर्सन हैज़ एनी डिजीज़। तो कितने परसेंट लोगों को डिजीज़ है, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिजीज़। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पर्सन हैज़ एक्चुअली द डिजीज़, इट विल बी 0.2 मल्टीप्लाई 0.1, ओके 0.1 है ये 0.1% लोगों को क्या है, डिजीज़ है। तो P ऑफ A बाई E2 क्या हो जाएगा बेटा, जिनको डिजीज़ है उनके पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितना है, द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। मतलब जो हेल्दी हैं उनको पॉजिटिव दिखा रहा है। P ऑफ क्या दिया हुआ है, जो हेल्दी हैं, ठीक है, उनके पॉजिटिव आने की P ऑफ A बाई E1 ये दे रखा है 0.5%, इट मीन्स दिस विल बी 0.005, ओके। जो हेल्दी हैं उनके बीमार होने की, जो हेल्दी हैं उनको पॉजिटिव दिखाने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो जो हेल्दी नहीं है मतलब जो बीमार हैं उनके पॉजिटिव रिपोर्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.005। सो इट विल बी कितना हो जाएगा, 0.994 आई थिंक, है ना, 995 0.995 हो जाएगा, 5 5 10 0 1 910 1 910 10, ठीक है, ठीक हो गया। सो ये 0.995, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P A बाई E1 मीन्स जो डिजीज़ है जिनको बीमारी है उनके पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितने हैं, 0.005, ठीक, नहीं 0.995 अपॉन P ऑफ E1, अ पर्सन इज हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। तो हेल्दी पर्सन कितने हैं, कितने परसेंट लोग हैं हेल्दी, 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिजीज़। तो 0.1% लोगों को अगर डिजीज़ है तो कितने परसेंट लोगों को नहीं होगी, 1 में से 0.1 माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस 0.1, तो 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 1 9, ये कितना हो जाएगा, 1 दिया था यहाँ पे 0, सो 0.99 है ना। सो 0.99 इंटू P ऑफ A बाई E1, P ऑफ A बाई E1 कितना है, 0.005 प्लस 0.1 इंटू 0.995। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ओके। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। So dear student, this is all about from today's video lecture. Next video lecture we will discuss some more questions and listen one thing very carefully. एक लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम से हर बार आता है, तो इस बार भी डन है आएगा, क्योंकि CBSE हैज़ रिड्यूस 30% सिलेबस। सो रैंडम वेरिएबल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपके थे, वेरिएंस, ओके, मीन एंड बर्नौली ट्रेल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये सारा कुछ हट चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। एंड इसको कैसे कैटेगराइज करें, कैसे क्लासीफाई करेंगे इवेंट A, E1, E2, E3 को, वो मैं बता चुका हूँ। इवेंट A ऑलवेज वो इवेंट होता है जो ऑलरेडी हमें गिवन होता है, और E1, E2 वो होते हैं जो उससे रिलेट होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।